Hello, good afternoon, guys. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Afternoon, Good afternoon, ma'am. afternoon, guys. Good Just a afternoon, second. ma'am. Yes, good afternoon. So, you clearly remember whatever was taught to you in the previous class? Yes, ma'am. Okay, perfect. Uh, Let me just open the Google sheet. Is the page visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Wherever you cannot find or understand, so please just ask me the questions, okay? So, in yesterday's class, we studied about the the industry and how it operates with different networks and interconnected sectors. What are the primary sectors that makes the industry thrive, right? So these are the industry. These are the sectors or parts of the industry which actually helps the industry grow, thrive, and you see the new designs upcoming. So it's because of the fact that lot of professionals, creative professionals, curate innovative styles, designs, and then it gets developed as a prototype, as a for the mass market, and it further it develops, right? So we studied about design, manufacturing, marketing and branding, retail, and supply chain management, right? So these are the five predominant areas wherein all of these five areas actually contribute towards towards making an industry grow. Okay, now this is a chart. Okay, this is a diagram wherein you can see there's a clear loop, there's a circular loop, right? The- oh, sorry. So there's a circular loop, wherein you have different components. Okay, so what are the different components? First is plan. Okay, so plan means we initially first plan. Okay, we plan on basis of what? We plan on the basis of analyzing the historic performances. जैसे कि मान लो कुछ चीजें होती हैं क्लासिक्स, ठीक है, हम उसका पास सेल्स एनालिसिस करते हैं. वी सी दैट कि दैट पर्टिकुलर स्टाइल or that particular design is appreciated throughout the years and years. Okay, has been appreciated or is being appreciated over a period of time. So we, and there are certain designs which comes like a fad fashion. That means that it is there for a very limited period of time. It is very short lived, right? For example, I gave you for classics, we have this men's shirt. Okay, linen shirts. Linen shirts is something which is very very classic. Okay, if I talk about, let's say, something which is fad, let's say this, neon color trend. Okay, animal prints. It came, then it went. You would not see a style which is recurring time after time, irrespective of season, irrespective of climate, irrespective of taste, preferences. There are certain designs which are timeless, which is classic. Okay,
So we, on the basis of that, for each and every design that the industry makes, okay, and when the product, okay, gets into the shop floor or gets into a retail store, you go and buy, right? You don't keep a record of what you are buying, but from where you buy, let's say you have gone to Zara or maybe H&M or any store. You go there, they used to do a billing, okay, and in those bill, the products have specific SKU, okay, specific codes. So वो कोड का वो नोटिंग करते हैं. आपने मान लो से वो ही, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एक डिजाइन एक पूरे पूरे प्री पैक में आता है. प्री पैक मतलब एक्सेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ठीक है. तो ये जो जितने साइजेस हैं, आप अपना जो बेस्ट साइज है आपने वो पिक किया, चूज किया और आपने ले लिया, ठीक है. तो दूसरा कोई आएगा, उसको दूसरा साइज पसंद होगा, तो वो उसको पिक किया, सेम डिजाइन का वो ले गया. ऐसे करते करते सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट होते हैं. लेकिन इस चीज का ट्रैक कौन रखता है? द कंपनी कीप्स अ ट्रैक, ओके, इन द रिटेल स्टोर कीप्स अ ट्रैक कि आज के डेट में कितने सेल्स हुए और कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल ही बिक नहीं रहा है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट द एनालाइज, अगर ज्यादा स्टॉक की जरूरत पड़ेगी तो फिर से वो मर्चेंडाइजिंग के थ्रू वो फिर से स्टॉक लाके स्टोर में रखेंगे. सो बेसिकली व्हाट दे डू इज they organize the things, they analyze the historical performance of the garments that are getting sold day by day, okay. मान लो एक नया सीजन, you know that all of you are aware that fashion industry, okay, always works 1 year ahead of time, okay. मान लो 2000, आज के डेट में we are sitting on September 2024, तो आज के डेट में आई एम टेलिंग यू सितंबर 2025 का कलेक्शन बन चुका होगा, रेडी होगा, वो डिस्पैच हो गया होगा, रिटेल स्टोर्स में लगा नहीं होगा, लेकिन वो रेडी हो रहा होगा, दैट इज इन द प्रोसेस. सितंबर 2025 का कलेक्शन आज के डेट में बन चुका होगा. दैट इज हाउ द इंडस्ट्री ऑपरेट्स, okay. The fashion industry always works 1.5 year ahead of time, okay. Are you getting my point, everyone? Please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it always works 1 year ahead, and तो उस हिसाब से वो लोगों को स्टडी करते हैं, फोरकास्ट को स्टडी करते हैं, क्या ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं. बड़े बड़े फोरकास्टिंग, फैशन फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे कि दे कंसल्ट देम, एंड उसको लेके फिर you must have heard about WGSN, now you must have heard of Promostill, different kinds of fashion forecasting websites are there, okay, wherein what they do is they forecast कि प्रिंट्स में इस तरीके के प्रिंट्स को नेक्स्ट ईयर लोग अप्रिशिएट करेंगे, उस चीज को समझ के देन द डिजाइन, ओके. सो फर्स्ट थिंग इज वी एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लोथिंग, ओके, वेदर दैट डिजाइन विल गेट सोल्ड और नॉट. मान लो वो डिजाइन बिक ही नहीं रहा है, तो वो डिजाइन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट. दे डू सर्टेन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस so that they analyze the situation better. ये बहुत नॉर्मल सी चीज है. जैसे घर में कोई सब्जी अगर आप लोग खा नहीं रहे हो तो आप वो सब्जी लाओगे क्या? हाँ या ना में बोलो. No, ma'am. You won't get it, right? अगर कोई सब्जी आपको बहुत पसंद है, you would feel like कि वो हमेशा स्टॉक में, फ्रिज में या कहीं पे रहे, right? So according similar manners, these are human psyche, right? wherein जो हमें पसंद है हम वही चीज को बार बार यूज करना चाहते हैं, जो चीजें हमें पसंद नहीं है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, करेक्ट. तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो उन सारे लोगों को अलग अलग एज का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग प्रेफरेंसेस है, अलग अलग डिजाइन चॉइसेस है. तो उन सबको और जोग्राफिकली ऑल्सो इंडिया में 20 to 30 एज ग्रुप के जो लोगों को जो चीज पसंद आएगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो यूएस के वही लोगों को सेम पसंद आएगी, बट देयर वुड बी सम सिमिलैरिटीज बिकॉज द एज ग्रुप इज सेम.
ओके, सो वैसे ही एज वाइज सेग्रीगेट करते हैं वो लोगों को। उसके बाद फिर वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये किस मार्केट के लिए हम लोग बना रहे हैं, ब्रांड किस चीज को किस चीज से डील कर रहा है, उसका यूएसपी क्या है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ यूएसपी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी? Anyone? Okay, USP stands for, मैम yeah, दोबारा बताना। क्या? दोबारा बताना। Ma'am, USP, I think unique selling something. हाँ, it is unique selling proposition. हाँ भावना, क्या बोल रहे हो आप? दोबारा क्या बताओ? तो अभी बोला उसे रिपीट कर दो। क्या क्या? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आया? बी स्पेसिफिक। What you didn't understand, you have to tell me that कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई। If you tell me कि मैम समझ नहीं आया, आप रिपीट करो, तो मैं क्या, कहाँ से क्या चीज रिपीट करूँ? You have to be specific, no? You have to tell me, ma'am, this part I couldn't understand. Please tell me or explain me. बताओ भावना, क्या नहीं समझ आया? ये सेल्स वाला पार्ट। ये क्या? सेल्स वाला पार्ट। ये कौन सा वाला पार्ट? सॉरी, सेल। फेल। सेल। I'm not getting it what you are saying. Can you write your question? फेल वाला पार्ट मतलब क्या? जैसे डिजाइन आपने प्लान बताया, डिजाइन बताया, उसमें आप सर्कल में आप बता रहे हो वो सेल वाला पार्ट। मैं तो डिजाइन को गई ही नहीं हूँ, मैं तो अभी नॉर्मली प्लान को ही बता रही हूँ कि प्लान को कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करने से पहले करते क्या है। ओके मैम। नहीं नहीं, बताओ बताओ, तुमको जो समझ नहीं आया, बी क्लियर, बी वेरी स्पेसिफिक, क्या नहीं समझ आया? आप जो बोल रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ कि आप कौन सा पार्ट नहीं समझ पाए। आप कंटिन्यू करिए। मैम मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है। हाँ हाँ जैनब बोलो। मैम जैसे कि आपने बोला कि किसी भी स्टोर पे मतलब कोई एक प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है और एक प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो फिर उस प्रोडक्ट का क्या होता है? क्या वो सेल लगती है? जैसे दिवाली पे, दशहरा पे इन पे सेल लगती है तो वो ऐसे सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को? जैनब फिर से बोलोगी प्लीज? मैम जैसे किसी भी स्टोर में जैसे कोई भी कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन हमारा सेल नहीं हो रहा तो हाँ वो कलेक्शन फिर वो कैसे सेल होता है? क्या उसको उसकी सेल लगाई जाती है जैसे 50% ऑफ, नाइन्टी हाँ परसेंट हाँ, ऑफ, इस जैसे कि तरीके कोई से? प्रोडक्ट सेल नहीं होता, वो फिर आपके सीजन एंड में वो रहता है कि वो ईओएसएस में जाता है, एंड ऑफ सीजन सेल में आपका जो 50% ऑफ, 60% ऑफ में वो जो ऑफर में वो प्रोडक्ट को फिर डिस्प्ले करते हैं। ओके मैम। हम्म, तो पहले क्या करते हैं, तो बेसिकली दे प्लान, ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गारमेंट, सो दे प्लान इट, ओके, देन दे रिस्पॉन्ड टू द करंट कंज्यूमर ट्रेंड्स, ओके। फिर वो देखते हैं कि लोगों को क्या चीज पसंद है, कौन सा डिजाइन पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, सो वो सारी चीजों का ध्यान वो रखते हैं। ठीक है। ओके मैम।
Then coming to design, okay, ideation on potential concepts. So basically, what they do is first they understand the consumer trends, okay, their preferences, and वो सब वो देखते हैं. फिर वो परफॉर्मेंस भी मतलब जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं. तो ब्रांड का जो 3-4 साल का जो सेल्स डेटा होता है फिर उसको वो देखते हैं प्रोडक्ट कोड के हिसाब से कि ये प्रोडक्ट कितना बिका है, ये प्रोडक्ट कितना नहीं बिका है. ओके, तो उस हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा इस डिजाइन को हम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो अपना नया नया कॉन्सेप्ट लेके नया नया डिजाइन शुरू करते हैं बनाना. ठीक है, लेवरेज टूल्स फॉर कोलैबोरेशन. मान लो कोई हाई एंड मशीन यूज करने की जरूरत है या कुछ करना है, कुछ नया टेक्निक नया आया है, तो उस हिसाब से ओके दे डिजाइन दी थिंग्स. okay once they design the elements, okay, what they do is they develop the prototypes and the samples. Okay, they develop the prototypes, they develop the samples, and उसके बाद सैंपल्स डेवलप करने के बाद, सैंपल्स में क्या है, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट वो लोग डेवलप करेंगे. ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको प्रोडक्शन में डालेंगे तो वी नीड मोर अमाउंट ऑफ trims, more amount of fabrics, we need something which is more. Okay, and we need it in larger quantities, right? हम सिर्फ एक चीज तो नहीं बना रहे, we need it in more quantity. तो क्या होता है फिर उसके बाद कि they then generally source. Okay, they source, they identify the best performing vendors जो कि क्रेडिट में आपको चीजें दे सकते हैं, या फिर कुछ चीजें हैं कि मतलब वो they won't question you कि आप इतने दिन रखे हो या क्या है, whatever, मतलब they would not bother you very much. तो वो पोटेंशियल बॉन्ड वेंडर्स को भी देखते हैं कि ये वेंडर मतलब इसके साथ हम काम कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रस्टवर्दी वेंडर है, ये प्राइस नेगोशिएशन प्रॉपर्ली कर रहा है. तो उस हिसाब से वो वेंडर सिलेक्ट करते हैं. वेंडर सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन में उस चीज को डालते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन में फिर डाला जाता है. फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड पर्सनलाइजेशन. ओके, देन उसके बाद तो फिर प्रोडक्शन में फिर जाता है. प्रोडक्शन बनने के बाद फिर वो डिलीवर होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया, रिटेल स्टोर्स में जाता है, जहां जहां जाना होता है वो जाता है. ठीक है, डिलीवर, देन इट गेट्स डिलीवर्ड. ओके, देन व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, देन द सेल. एक बार रिटेल स्टोर में वो पहुंच गया. ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट. अल्टीमेट उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि हम उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे. ठीक है, तो वो सेल हम कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कैसे सेल करेंगे. हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हम कौन कौन से मार्केट में बेच सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स और पोटेंशियल ये कौन कौन है. तो उस हिसाब से हम वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फिर सेल के लिए डालते हैं, रिटेल शॉप फ्लोर में डालते हैं. ठीक है, कि मार्केट के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. एक जगह है, ठीक है, वहां पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिजाइन विल सेल. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, in Delhi people would really appreciate high end fashionable garments which has a deep plunge neckline, okay, which has a very stylized stylized uh, this thing neckline or maybe silhouette. So but then that particular design might not be appreciated, okay, which which is targeted in some tier 2 cities or tier 3 cities. Okay, they might not appreciate that. Okay, so in that case what we did need to do, we need to think wisely. We need to see कि कौन से stores में ये product बहुत अच्छे से बिक सकते हैं, depending on the design, depending on the demography. Okay, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, उसको फिर change करते हैं. ठीक है, कि ये प्रोडक्ट वहां जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा. ठीक है, so depending on the demography also they allocate the products, then the products are further allocated. Understood? Yes, ma'am. समझ में आ रही है, कहीं पे डाउट है?
जैनब, निकिता, भावना, जोसेफ, आ रहा है मैम, समझ आ रहा है। कोई डाउट है? कोई डाउट मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इस चीज में प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है? नो मैम, समझ आ रहा है। ओके, okay. Then let me go to the next slide then. So you everyone understood how the industry operates? Okay. Now coming to the impact that it creates. Okay. Coming to the impact that it creates. Okay. Now मैंने आपको कल ही अच्छे से समझाया था कि we have to be very very conscious and very very responsible while we are taking a decision. Okay. Because it has, for everything that we are doing has an impact. It could be on a positive note, it could be on a negative note. Okay, so we don't really know whether things will work in favor of us or against of us. Okay, now in the right hand side you see an image. Okay, you see an image wherein a woman is, buying a very trendy product. Okay, she's buying a trendy corset top. She's imagining herself in that dress which she likes. Okay, she orders for the product. She imagines herself that कि अच्छा ये product मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, फिर वो उसको खरीदती है, फिर उसको पहनती है. ठीक है, और कुछ दिनों के बाद उसको वो फेंक देती है. मैंने आपको कल भी अच्छे से समझाया था वो चीज कि Yes, ma'am. that becomes, तो that becomes a regular practice. यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया. करेक्ट. तो उससे क्या होता है, वी डोंट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस दैट वी आर एक्चुअली बियरिंग. एक गलत डिसीजन की वजह से, ठीक है, कितने लोगों को सफर करना पड़ रहा है. वी डोंट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस. So this is a very high time that we need to understand that whatever we are buying, it is trending right now. It might not trend after maybe 6 months or 1 year. What will you do with that particular piece? Ideally मुझे सब बताओ कि अगर आपने कोई चीज खरीदा, ठीक है, आपको वो पसंद आया, आपने खरीदा, और आपको फिर 6 महीने बाद लगा कि यार ये तो आउट ऑफ फैशन है. ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे फिर उस चीज का? मुझे बताओ, एक एक करके बताओ. व्हाट विल यू डू? यस जैनब. मैम हम तो जरूरतमंद लोगों को दे देती है मम्मी. जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं. वेरी गुड. Yes, ma'am. ओके, वेरी नाइस. ओके, निकिता आप क्या करोगे? मैम हमारे हरियाणा में मोस्टली मतलब सूट्स और ये सब वियर किया जाता है, और जो ट्रेडिशनल मेरे वेडिंग में मैं क्लॉथ्स पहनती हूँ उनको मैं दोबारा से क्रिएट करके कोई न्यू ड्रेस बना लेती हूँ. और जो मेरे घर के कपड़े होते हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो मम्मी उसको ड्रेसिंग वगैरह में या फिर फ्लोर क्लीनिंग वगैरह में यूज़ कर लेती है. जो पहनने लायक हैं वो लेबर वगैरह को दे दिए जाते हैं. वेरी गुड निकिता. ये हुई ना एकदम इंडियंस वाली बात. वी इंडियंस, हम लोग, वी हैव दिस टेंडेंसी, वी आर वेरी वेरी सस्टेनेबल बाय नेचर. आजकल वेस्टर्न जनरेशन के इन्फ्लुएंस में हम कपड़ा फेंक देते हैं, बट हर घर में देखो, when we go to 10 years back down the line, we see that every household, in every household, पुराने कपड़े अगर हैं तो फिर मम्मी उसको पोछा बना देगी, या तो मम्मी उसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज तो कर ही देगी, है ना. पुराने पुराने साड़ियों को आई हैव सीन, माय नानी आल्सो, ठीक है, शी यूज्ड टू मेक कांथा. ओके, मतलब 3-4 लेयर ऑफ साड़ीज को एक साथ वो स्टिच करके, छोटे जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए वो ये बना देते कि उसके ऊपर वो सो सके. तो उनको ऐसे वो गद्दा भी नहीं चाहिए होता क्योंकि बॉडी ये नहीं होगा, तो जिसकी वजह से दे यूज टू मेक फ्लैट मैट्स फॉर द बेबीज, राइट, है ना. तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रैक्टिस है कि हम वेस्ट फैब्रिक को क्या किया जाए. लेकिन आज की जनरेशन में अगर देखा जाए
तो ये चीजें धीरे 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 कम हो रही हैं. They feel very offended, they feel very shy, they shy away from the fact that कि अरे यार मैंने इसको यूज नहीं किया, मम्मी ने इसको फिर घर का पोछा बना दिया. No, we don't want it that way. We want to throw it away. So the thing is, we have to be very, very conscious. We have to realize the aftermath around it. Right? Joseph, bolo, aap kya karoge? What will you do? Something that you brought, which was very trendy, and then later you realize after 6 months, ki, no, this is something which is out of my taste and I don't like it anymore. What will you do with that? Kind of recreate it, and or Recreate. else Yeah. give it to my friend who likes it. Or Okay. maybe return Let's it. say someone doesn't like it. Okay, you have used it for 6 months now, and then they don't want a second-hand garment. What will you do then? Give it to my mother. She can do best out of it. So mothers are meant. So mothers are mothers are the most sustainable people in this planet, because they know how to make the best out of the waste, right? Kanak, नो मैम, इन माय केस मेरी मम्मी मुझे देती है कुछ रिक्रिएट करने के लिए. वेरी गुड. तो अच्छी बात है ना, आप करो या मम्मी करे, जो भी हो, घर का चीज तो घर पे ही रह रहा है, वो कहीं बाहर तो फिक नहीं रहा ना, यस मैम. है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस कनक, व्हाट वुड यू डू? मैम मेरी प्रेफरेंस कॉटन कपड़े ही रहती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, उसका घर में यूज हो ही जाता है कॉटन कपड़े का, है ना? कॉटन यूज हो ही जाता है, एंड फिर वो पोछा वोछा लग जाता है, कुछ कुछ हो ही जाता है, वो है ना, यस डस्टिंग मैम. वस्टिंग भी यूज हो जाता है. यस मैम. यस जूही. यस मैम, मैं अपनी पर्सनल बातें करूँ तो मैं तो अगर 6 मंथ आफ्टर हो जाता है तो पहले तो मैं उसको रिक्रिएट करती हूँ, देन उसके बाद यूज करती हूँ. उसके बाद कैसे जब वो करते हो? हाँ, बोलो 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 बोलो. जब भी वो यूज के लायक बच जाता है, कंडीशन उसके सही होते हैं, तो मैं किसी और को दे देती हूँ कि वो दोबारा यूज कर सके. और मेरी मम्मी मतलब बुटीक है, मेरी मम्मी का बुटीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ जो वेस्ट फैब्रिक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या फिर जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, किसी का फैब्रिक स्टिच करके मैं उसके डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ. अच्छा, ओके, नाइस. तो आप फैब्रिक को रिक्रिएट कैसे करते हो? जो गारमेंट आपका बन चुका है, आप उसको रिक्रिएट कैसे करते हो? बन चुका होता है, मतलब फैब्रिक बड़ी है, हमें 1 मीटर का फैब्रिक है, हमें ब्लाउज बनाना है, ब्लाउज बना लिया, उसके बाद जो भी टुकड़ा बच जाता है, कई लोग होते हैं फेंक देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं. मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो आपने ब्लाउज यूज किया, ओके उसके मैम. ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? मान लो 6 महीने बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो अभी ट्रेंड में है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको पहनूंगी नहीं. हाँ, वो फर्स्ट में मैंने सिंपल ब्लाउज बनाया, फिर बाद में 6 मंथ आप मैंने देखा कि उसमें मतलब कुछ और डिजाइन चल रहे हैं, तो मैं उसको दोबारा कट करके कुछ बटन्स कुछ लेसेस ऐड करके उसको न्यू डिजाइन में कन्वर्ट कर देती हूँ. अच्छा, ओके ओके, नाइस, वेरी गुड. यस मीनाक्षी. मैम नॉर्मली तो जो नीडी लोग होते हैं उनको दे देते हैं कपड़े. अच्छा. हाँ जी. Okay. Zainab, you told me what you are supposed to do. हम Zainab? मोस्टली कपड़े जो हमारे, यस मैम, हाँ हाँ हाँ, मैम बोलो. जो मोस्टली कपड़े तो हम, जो हमारी आंटी काम करती है फैक्ट्री में, हम उनको ही दे देते हैं. क्योंकि उनके बच्चे हैं तो हम उनको दे देते हैं. और बाई चांस अगर मेरे से पार्टीज वेयर ड्रेसेस है तो मैं अपनी कजन के साथ शेयर कर लेती हूँ. उसने कभी मेरी वेयर कर ली और मैंने कभी उसकी वेयर कर ली, इस तरीके से हम शेयर कर देते हैं. Okay, nice, very good. Very good, very good. Yes, Kanak. मैम जो पैंट के कपड़े होते हैं थिक वाले, थिक फैब्रिक के, वो उसके थैले भी बन जाते हैं मेरे यहाँ. क्या या बनते हैं? मोस्टली मतलब एरिया वाइज वो उसके जो थैले नहीं होते हैं सब्जी वगैरह के लिए, या फिर वैसे बैग हाँ? मैम, बैग. हाँ, थैला, मार्केट में समझ गई मैं, हाँ, थैला, हाँ. बहुत सही रहते हैं मैम.
है ना, बहुत वो ड्यूरेबल है, फिर उस और 2-3 साल चल जाएगा वो, यस मैम। है ना। यस, वेरी गुड। ऐसे ही रिपर्पस करना चाहिए फैब्रिक को। ओके, now now that everyone repurposes their fabric or reuse their fabric, or they give it to someone who is in the need of they could share, or probably you donate your clothes, so it's a very good thing, right? So generally, whatever we understand from this conversation, yes, Nikhil, a new student is there, I guess. Yes, Nikhil, would you like to answer what you do with the leftover fabric? Yes, Nikhil. हेलो मैम। Yes, hello. जी हाँ, आप बताएंगे आंसर? जी हाँ, वो हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है कि पुराने फैब्रिक मतलब पुराने कपड़ों को अ, दूसरों मतलब हमारे चाचा ताऊओं में दे दिए जाते हैं, मतलब हमारे चाचा की लड़की है उनको दे दिए जाते हैं। अच्छा, जी नाइस, ओके। वही मतलब बेसिकली एवरीवन repurposes their fabric or use it in the some way or the other, है ना। It is not like it is just thrown away just by not using it, but it is repurposed again and again, again and again. So which is a very good thing. Now, now I'll read through the slides. The fashion industry exerts a significant global impact across economic, social, environment, and cultural dimensions, influencing various aspects of people lives around the world. Let's delve into each and every dimension. Now, economic impact. There are four major impacts that we'll be coming across. Okay, what are the four major impacts? The four major impacts are economic impact, social impact, cultural impact, and environmental impact. Now, coming to economic impact, ये इंडस्ट्री क्या है? ये जितना अच्छा भी करता है उतना बुरा भी करता है। मैंने जैसे आपको बिगिनिंग से ही बताया कि फैशन इंडस्ट्री जो है वो वो मतलब जैसा आपको कपड़ा चाहिए, जिसमें आप अच्छे लग सकते हो, जिसमें आपको पहन के बहुत खुशी मिले, बहुत सेटिस्फैक्शन मिले, it also caters to the fact that it makes you look more confident, everything is fine, but it has certain things which would come under the cons aspect as well. Okay, so now you being a responsible consumer and producer, you have to think what are you consuming and what are you producing. So the impacts are broadly classified into four categories. Okay, so what are the four broad categories? So first thing is economic impact. What are the four? The second is the social impact. Third is the cultural impact, and fourth is the environmental impact. Now, in the last class, I talked about the environmental impact, right? मैंने आपको SDGs के बारे में पढ़ाया था, if you remember, यस मैम। right? Sustainable Yes. development. यस मैम। तो वैसे ही एनवायरमेंट के ऊपर क्या कैसे हानि हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या है, तो उसके बारे में आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था कि क्या क्या हो रहा है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओके, हाउ डज दिस इंडस्ट्री पोज अ इम्पैक्ट on an economic scale? Okay, now ये इंडस्ट्री ऐसा है कि इट इज वेरी वेरी वर्सटाइल इन नेचर। ओके, सो फैशन इंडस्ट्री इज अ मेजर एम्प्लॉयर वर्ल्ड वाइड। सोचो कितने प्रोडक्शन होता है और लोग कितना खरीदते हैं, तो उस हिसाब से फैशन इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया, ओके, is the largest industry which contributes to the second largest GDP. So textile is the second largest GDP contributor. Okay, textile and fashion are the second largest GDP contributor to this world, to India's economy, right? So likewise, तो सोचो आप लोग कि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, कोई कोई डिजाइनर है, कोई मर्चेंडाइजर है, कोई
fashion is something which is multi, can be operated lateral divisions. Okay, matlab you can be a fashion communicator, you can be a fashion advisor, you can be a, you can be a production manager, you can be a designer, you can be a merchandiser, you can be an overseas client, you can be anything. Okay, you can be a pattern master, you can be good at stitching. If you're good at stitching, you could be a stitcher. Okay, you can be an embroidery person, you can be a, you can be anything. Okay, which is related to garment. You can be anything and everything under the sun which is related to clothing in the fashion industry. Okay, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैशन के सेक्टर्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट डिजाइन, इट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन बेसिकली. तो आपको पता हो, अब जैसे कि ये 4 सेक्टर्स को मिला जुला के हम अपना इंडस्ट्री को वी मेक इट थ्राइव. तो वैसे ही इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हर डायरेक्शन में है. करेक्ट. तो जब इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा तो ऑब्वियसली द कंट्री विल ग्रो, राइट. सो fashion industry is a major employer worldwide, providing jobs for millions of people across various sectors, including design, manufacturing, retail, marketing, and distribution. मान लो किसी ने फैशन पढ़ा नहीं है लेकिन उसने एमबीए किया है, तो ही कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द रिटेल एंड मार्केटिंग स्पेस, है ना. किसी ने सप्लाई चेन पढ़ा है तो ही कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप. किसी ने अगर, जैसे कि हम लोग के निफ्ट में बीएफ टेक है, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी वाला है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, सो ही कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. ओके, वैसे नाउ डिजाइन, तो डिजाइन यू नीड डिजाइनर्स जो कि डिजाइन ग्रेजुएट्स हों. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे कि दे कैन बी वेल अब्सॉर्ब्ड, राइट. फ्रॉम स्किल्ड आर्टिसंस एंड गारमेंट वर्कर्स टू फैशन डिजाइनर्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, द इंडस्ट्री सपोर्ट्स diverse livelihoods and contributes to economic growth. ठीक है, growth and development. तो जब इतने diverse livelihood से लोग आएंगे, काम करेंगे, है ना, तो obviously it will contribute towards a positive economical development, right? And there will be a very beautiful and natural growth in the industry. ठीक है, जब इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनके घर में उनके वो दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली, तो उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा है. उनके घर परिवार अच्छे से चलने से दे कैन प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, व्हिच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी दैट इट डेवलप्स, राइट. एजुकेशन इज द फंडामेंटल यूनिट जहां पे कि दे कैन कंट्रीब्यूट कि आप अगर अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दोगे तो वो कल पढ़ लिख के कुछ और अच्छा करेगा. करेक्ट. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर कोई इंडस्ट्री की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, करेक्ट, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से आपकी लाइवलीहुड अच्छी हो रही है, that means that's a very good thing. It is having a very good positive impact in your life, right? Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coming to trade and commerce, so fashion is a multi-billion dollar global industry. मैंने जैसे आपको बताया था globalization के बारे में, correct? With countries engaging in the production, trade and consumption of fashion goods and services. Fashion hubs such as Paris, Milan, New York and London drive economic activity through fashion weeks, trade shows and retail events, attracting tourists, buyers and investors from around the world. जैसे कि मान लो हर साल, एक्चुअली मान लो क्या मतलब, हर साल पेरिस, यू नो, इट इज अ फैशन हब. ओके, मिलान इज अ फैशन हब, न्यूयॉर्क, ये सब जगह, दीज आर फैशन हब, दे आर कॉल्ड द फैशन कैपिटल्स. ओके, सो क्या होता है कि वहां पे ना ट्रेड फेयर्स लगते हैं. ठीक है, ट्रेड फेयर्स का मतलब क्या होता है कि इट इज जस्ट लाइक एन एग्जीबिशन. Okay, it is just like an exhibition wherein people from across the world, okay, who are into the fashion business, okay, come to that trade show. वो ट्रेड शो में वो डिस्प्ले करते हैं कि क्या क्या नई चीजें उन्होंने डेवलप किया है, क्या क्या नई चीजें और डेवलप हो रही हैं, क्या नया टेक्सटाइल्स डेवलप हुआ है, क्या नया फैशन है. ठीक है,
सो दे कम एंड सिट टुगेदर एंड देन दे डिस्कस. तो उससे क्या होता है, जब लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, तो दे गेट एक्सपोज टू हाउ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग. एंड फिर उससे क्या होता है कि दे गिव प्रोडक्शन ऑर्डर्स, बाहर प्रोडक्शन करवाते हैं. जैसे मान लो इंडिया में बहुत अच्छा कुछ बन रहा है, तो फिर देन दे विल गिव ऑर्डर्स, दे विल ट्राई टू मेक लिंकेजेस विद इंडियन कंपनीज, जहाँ पे कि वो प्रोडक्शन करके हम उनको दे सकते हैं. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है उससे, है ना. तो जो कि हमारे कंट्री के स्टेटस को और हमारे कंट्री के करेंसी को और पावरफुल बनाता है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल चाइना के जो छोटे छोटे क्यूट प्लास्टिक चीजें जो आती हैं, ठीक है, आप सोचो वो आपको सस्ते में मिल जाती हैं, करेक्ट है ना. आपको सस्ते में मिल जाती हैं वो चीजें, हमें वो अच्छी Yes, लगती ma'am. है, बट वो मेड इन चाइना होती है. आपने देखा होगा, वो नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, Yes, ma'am. है ना. Yes, ma'am. वो पैसे में वो अच्छी चीजें वो सप्लाई करता है चाइना, ठीक है. ये जो लाइट्स, अब जो दिवाली में जो लाइट्स लगाते हो, फेरी लाइट्स वगैरह, ये सब चाइना से आता है, ठीक है, वहां से प्रोडक्शन होता है. तो सोचो इतने घरों में इंडिया में, ठीक है, ये फेरी लाइट्स वगैरह लगता है. फिर ये जो स्टाइलाइज्ड वाले वो जो फेरी लाइट्स लगाते हैं, ठीक है. पहले क्या था, दिवाली हम लोग दिया 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 लगा के जलाते थे. हम लोग का ये लाइट वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत लेट आया, इजी है. तो चाइना ने उस चीज को समझा और उसके बाद उसने डिजाइन किया और फिर लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे. तो फिर Yes, ma'am. तो फिर चाइना क्या हुआ, यहाँ पे उसने अपना कमोडिटी बेच के ट्रेड किया, ठीक है, अपना कमोडिटी बेच के उसने ट्रेड किया. तो जो हम खरीद रहे हैं, इंडियंस खरीद रहे हैं, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है ना. हमारा पैसा जो है वो तो चाइना जा रहा है. तो पैसा उनके कंट्री जा रहा है. तो वैसे ही हम अगर कुछ अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, तो वैसे ही कोई कंट्री अगर उस चीज को अप्रिशिएट करेगा, तो फिर वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन और उस चीज का होगा. उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया में ज्यादा पैसा आएगा, इंडिया में ज्यादा इन्फ्लक्स होगा पैसों का, है ना. तो वी हैव सो दीज आर द थिंग्स which is to be taken care of. ठीक है, कि हम ट्रेड लिंकेजेस कैसे बढ़ाएं. ठीक है, जैसे कि इंडिया में क्या है कि इफ आई टॉक अबाउट टेक्सटाइल्स, हैंडलूम टेक्सटाइल्स, ये इंटरनेशनली बहुत वेल रिकग्नाइज्ड है. तो उसको 10,000 की साड़ी अगर आप 20,000 में भी वहां लेके बेचोगे, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज इट इज हैंडमेड, राइट. उनका टर्म्स है कि अगर आप उस टर्म्स के हिसाब से, उस हिसाब से आप करते हो, ठीक है. सो देयर इज अ फेयर ट्रेड पॉलिसी आल्सो, जहाँ पे कि आर्टिजन्स को पैसों का, वो बोलते हैं ना, यहाँ पे क्या है कि लोग बोलते हैं अरे हाथ का काम है, ये है, ठीक है, तुम सस्ता बार्गेन करते हो उनके साथ, बट दे विश टू पे मोर. हम लोग क्या है, बार्गेन करते हैं, बट वहां के लोग क्या है, दे पे मोर, बिकॉज ये हैंडक्राफ्टेड है. लोग एक इंसान को इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा होगा. मशीन में क्या है, मशीन तो फटाफट चीजें बना देंगी. देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट विद द प्रोडक्ट, राइट. तो ये सारी चीजें हैं, दीज आर Yes, वेरियस ma'am. things that we need to understand while we are doing trade and commerce. Okay. Eco-friendly products, right. Supply chain. The fashion industry supply chain spans multiple countries and continents, with raw material sourced from one region, production facilities located at another, and finished products distributed globally. The interconnected supply chain contributes to global trade and investment flows, fostering economical interdependence and collaboration amongst nations. अच्छा, supply chain. आप अभी मैं आपको 10 मिनट्स का एक टास्क दे रही हूँ, ठीक है. इट इज 4:52 नाउ, ठीक है. आप लोग मुझे स्टडी करो एप्पल, APPLE, ठीक है, एप्पल का सप्लाई चेन सिस्टम मुझे स्टडी करो कि ये कैसे रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करता है, ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ करवाता है, ठीक है, फिर असेंबली कहाँ होता है प्रोडक्ट का, ठीक है,
और ये कैसे हर जगह दुनिया के हर कोने में ये एप्पल का प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है। और उनका ये पूरा जो सप्लाई चेन है कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ट्रेड को, ठीक है। मैं ये आपको एक कंपनी का नाम बताया अभी, एप्पल, ठीक है। आप आईफोन का देखो, एप्पल आईफोन का सप्लाई चेन सिस्टम देखो, गूगल में सर्च करो और समझो, और उसके बाद फिर वी विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। आई एम गिविंग यू 10 minutes टू अंडरस्टैंड दिस। आप ये खुद करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है।
Okay. Guys, am I audible to everyone? Yes, yes. Yeah. Yes. Okay. Okay. Now, one by one, okay, please tell me, okay, or maybe I'll pose questions, okay. So, Minakshi, Yes, ma'am. tell me, where, what did you understand from the supply chain of Apple? मीनाक्षी, आपको क्या समझ आया जब मैंने आपको बोला कि एप्पल के सप्लाई चेन के बारे में स्टडी करो? मैम सप्लाई चेन में ये सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है वर्क, जो डिज़ाइन से स्टार्ट होता है, मतलब डिज़ाइन से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुँचता है। करेक्ट. But then आपने Apple in relation to Apple, what did you understand? That is what my question is. Meenakshi, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, answer na. Why are you keeping yourself on mute? Answer me the question. मीनाक्षी बताओ. क्या आवाज ही नहीं आ रही है? मैम आ रही है आवाज़. हाँ तो बताओ फिर, अगर आ रही है तो फिर बताओ फिर. मैम सप्लाई चेन में ये मतलब कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है. अंडरस्टूड. दैट इज नॉट माय क्वेश्चन. मैं आपको क्या टास्क दी थी? जो 10 मिनट्स में आपको यही टास्क तो दिया था कि एप्पल के हिसाब से समझना है, एप्पल एज अ ब्रांड. तो उसके हिसाब से, आईफोन के हिसाब से आप आईफोन का समझो कि उसका सप्लाई चेन कैसा है. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एप्पल सप्लाई चेन? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. जो फॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हो कि सप्लाई चेन ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, दैट इज अंडरस्टूड. बट हाउ डज it is applicable in Apple? How it works? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैम मैंने ये स्टेप्स पढ़े कि सप्लाई चेन एप्पल में मतलब डिज़ाइन कहाँ पे होता है, सोर्सिंग कहाँ होती है उसकी. हाँ वही बताओ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि वही बताओ फिर. एप्पल का जो डिज़ाइन होता है वो कैलिफोर्निया में डिज़ाइन किया जाता है. हाँ फिर उसके बाद उसकी जो सोर्सिंग होती है वो ओवर 40 कंट्रीज में होती है. जो उसके कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो 40 कंट्रीज से आते हैं उसके. ओके. एशिया, यूरोप. हाँ, गिव सम एग्जांपल्स. जैसे चाइना से, एशियन कंट्रीज से, यूरोप से, ऑल ओवर 40 कंट्रीज होते हैं जहाँ से उसके कंपोनेंट्स आते हैं. देन वो मैन्युफैक्चर होता है. कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होंगे तभी तो आएंगे. मैम आईफोन मैन्युफैक्चर होता है कंपोनेंट्स आने के बाद. जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो 40 कंट्रीज में होते हैं अलग अलग. What are the components that you're talking about? What are the मैम components? उसका डिस्प्ले, कैमरा, हाँ. बॉडी. So that means that the product is not getting manufactured there, no? मैम पहले तो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. कंपोनेंट्स पहले मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर कंपोनेंट्स को सोर्स किया जाता है. यस. हाँ, उसके बाद फिर
उसके बाद फिर क्या होता है? मैम उसके बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद वेयर हाउस में भेजा जाता है, जहाँ पे ये अश्योर किया जाता है कि उसके जो भी सारे कंपोनेंट्स है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, जूही प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। एक बार सोर्सिंग हो गया एप्पल का अक्रॉस फ्रॉम 40 कंट्रीज, उसके बाद क्या होता है? एक्सप्लेन मी जूही। जूही आर यू देयर? यस मैम। हाँ बताओ। ये जो 43 कंट्री से इसके जो पार्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसको ताइवान की जो कंपनी है फॉक्स और मेगाट्रॉक्स उसको असेंबल करती है, और इसके जो डिस्प्ले हैं वो सैमसंग और एलजी बनाती है। ये एप्पल की डिस्प्ले जो है। ओके ओके। और इसकी जो असेंबलिंग है वो चाइना और ब्राजील में की जाती है। चाइना और ब्राजील और में। हाँ, और फिलहाल मैम ये इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है, इसका सेटअप किया गया है फॉक्सकॉन का। फॉक्सकॉन का सेटअप किया गया है। करेक्ट, गुड। जोसेफ? Hello. Yeah, please explain the process. Okay, so talking about Apple's SCM, which is supply chain management, it plays an important role throughout, where import and export takes a major role throughout. Where Apple, which is a brand, uh, headquarter is located in California, USA. So Yes. what they do, they send their supply schedule, like quantity, date, time, destination, and etc. to different parts of the world where the suppliers are. Example, from Japan or from Korea, they take lens or maybe screens, battery, RAM, motherboard, and different kind of products or the raw materials from them. Correct. And what they do, they send it back to the central house, which is located in China. So China has in China individually, it has 349 suppliers, where they also supply things to the warehouse, which is located in China. So what they do, they receive the components and they assemble it, test it, pack it through robot and humans. Robot plays a major role in this because they do the motherboard assembly, and rest of the things the human beings they do the staffs of the factory. And then they after doing all this, they send the finished units through air throughout the world, throughout the globe, where distributors they distribute the products to different dealers. And while doing this, they also send the dispatch data to back to Apple headquarters, which is located in US. So this is the process which takes place. Good. Very good. Very well explained. Okay. Thank you. Who else want to explain the process? Nikita, would you like to share your insights? यस मैम। Yeah. मैम आईफोन जो है अपना, जो आईफोन का साइकिल है सप्लाई चेन, वो एक कंट्री में नहीं है, मेनली बहुत सारी कंट्रीज में है। फॉर वो फर्स्ट डिज़ाइन का जो मेन फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइन और डेवलपमेंट का, वो कैलिफोर्निया में होता है, उसके हेडक्वार्टर है जो एप्पल का। उसके बाद जो उसके कंपोनेंट्स और सोर्सिंग होता है वो मेनली 33 कंट्रीज से होता है। उसके बाद उसको जैसे मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं जो फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं वो प्राइमरी चाइना में है। जो उस चाइना में जिसको आईफोन सिटी के नाम से जाना जाता है, उस सिटी का नाम ज़ैनज़ाऊ कुछ करके है। एंड देन उसको जस्ट अ सेकंड मैम, वहां पे उसके जो सभी उसका जो प्लांट है उधर उसको टुगेदर करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में वहां पे बनाया जाता है। उसके बाद उसका क्वालिटी चेक कंट्रोल टेस्टिंग होता है। उसके बाद उसको वेयर हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर रिटेलर्स के पास भेजा जाता है। करेक्ट। यस मैम।
और जो एप्पल का वेयर हाउस है वो भी कैलिफोर्निया में ही है, यूके में। एंड देन जो है उसको शिप किया जाता है या फिर उस वेयर हाउस से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनली। Correct. Anyone else who wants to contribute to the discussion? Yes, Kanak? Yes, Kanak, please tell me. हेलो, सॉरी मैम, वॉइस ऑन नहीं था। सबसे पहले मैम रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्रीज से। उसके बाद फिर जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे डिस्प्लेज हो गया या फिर चिप्स हो गया, मतलब उसके जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, जैसे TSMC करके मतलब कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज बनाती है। फिर डिस्प्लेज उसकी सैमसंग के द्वारा बनती है, मेमोरी उसकी SK हाइनिक्स के द्वारा। ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स जो बनते हैं, फिर असेंबलिंग उसकी चाइना में होती है। लाइक फॉक्सकॉन एक कंपनी है, पेगाट्रॉन करके कंपनी है, वो असेंबल करते हैं। फिर उनकी क्वालिटी मतलब चेक की जाती है असेंबलिंग के ही दौरान। उसके बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। करेक्ट। और उसके बाद फिर उसकी जो मार्केटिंग और सेलिंग जो है रिटेल, मतलब उसके बाद उसकी की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन तो आईफोन के एप्पल के जो ओन रिटेलर्स होते हैं उनके वहाँ पे भी होती है, फिर ऑनलाइन भी उसकी की जाती है, और मार्केटिंग और सेलिंग उसके बाद की जाती है आईफोन कंज्यूमर्स तक की। Correct. Okay. So I believe that everyone has understood the supply chain system. Like you have learned about Apple. I believe that everyone is now clear. Everyone must have studied that how a company, robust supply chain. So Apple's, supply chain is very robust, very well organized, very well planned, right? They have proper warehouses, they have proper organized sectors wherein there is very less mess up. Okay, so these are the things which you need to understand while you are understanding the supply chain systems, क्योंकि सप्लाई चेन ही आपको समझाएगा कि एक कंपनी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए क्या क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशंस लेने हैं, एंड फिर उसके बाद हाउ डज इट हेल्प, ओके, एंड हाउ डू दे मिटिगेट द रिस्क of spillage or breakage or anything, and then how this interconnected sectors contributes to global trade. मान लो कि जैसे कि कहीं एक जगह असेंबल हुआ और फिर बाकी पूरे कंट्रीज में, जितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, हर जगह आईफोन बिकते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? तो ये सारी चीजें देख के समझ के फिर उसको प्रोडक्शन करवाना, फिर सेल करवाना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक्चुअली क्या करता है कि it helps you to foster the economical interdependence. ठीक है, आज के डेट में majorly people they appreciate iPhone because of the security, because of the privacy, because of the seamless adaptability into their products, right? वो फोन हैंग नहीं होता, सिक्योरिटी देता है आपको, प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती, राइट? तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत वो दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, राइट? बट इट कम्स फॉर अ प्राइस, ठीक है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो एक्सपेंसिव है, बट इट इज नॉट दैट कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं whether that is worth it or not, because we don't really know how to operate also. ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बस आईफोन खरीदना है because everyone is buying it and it is now has become a status symbol, तो लोग उसको खरीद रहे हैं, but we need to know that why that product is expensive, okay, what are the features around it, so that it makes it very expensive, right? So we need to understand these intricacies, तभी हम एक प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, करेक्ट?
सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है. वी जनरली डोंट गिव और पे अटेंशन टू दिस क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट. कमिंग टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. फैशन थ्राइव्स ऑन क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, with designers and brands constantly pushing the boundaries of style, technology and sustainability. फैशन एक ऐसा फील्ड है जहां पे बिना क्रिएटिविटी में आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, because constant is the only thing that is permanent here. Sorry, change is the only constant here. Change is the only constant here, which means that every day there is a change. And to combat with that particular change, one has to be really, really creative so that he or she can plan to bring something new into your plate. बिना क्रिएटिविटी के आप अलग अलग चीजें डिलीवर कर ही नहीं सकते. You have to be really, really creative. You have to have entrepreneurial skills, right? Then only you can innovate. Then only you can create something which is new, which has to meet the, at the edge of technology. In this cutting edge technological generation, do you really think you can survive without accepting the change, right? So accordingly, fashion, technology, style, sustainability, these are the big gigs of the, town, right? And you have to, accept it, because that is how we are living. We have to accept the constant changes, and accordingly we are living that life. So innovation and entrepreneurship play a very, very significant role in creating an economic impact. Italy is known for their beautiful craftsmanship in, for their crafts, for the local crafts. उनका एक एक आर्टिजनल पीसेस, वुड क्राफ्ट हो गया या फिर कोई सा भी वो क्राफ्ट आप ले लो, ठीक है. पॉटरी ले लो या फिर पेंटिंग्स ले लो. Italians are the pioneer. They have skilled themselves. They have a mastery over their craftsmanship. वो अपना हर एक प्रोडक्ट को इतने डेडिकेटेडली, इतना पेशेंटली, इतना क्रिएटिवली चीजों को अप्रोच करते हैं और उसको बनाते हैं कि उनके एक एक प्रोडक्ट 1 मिलियन USD में बेचा जाता है. और यहाँ पे क्या है कि उससे वही प्रोडक्ट है. लोग आजकल बस मनी मेकिंग के पीछे पड़े, तो वो उनका क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लूज हो गया है. विच इज वाई वी एज कंज्यूमर्स ऑल्सो बार्गेन कि नहीं इसको इतने में दो, बिकॉज वी डोंट वैल्यू क्राफ्ट्स, राइट. और क्राफ्ट को वैल्यू हम कब देंगे? जब कोई आर्टिजन या कोई क्रिएटिव पर्सन या फिर डिजाइनर, जब वो अपने काम को बहुत क्रिएटिवली उस चीज को बनाएगा या फिर उस चीज को इनोवेटिवली उसको पुट करने की कोशिश करेगा, तभी उस क्राफ्ट को हम अप्रिशिएट करेंगे. करेक्ट? Which is out of the box, which is appreciated, right? Now coming to social impact, okay, what are the different kinds of social impact that does it has? Please read this slide. Identity and expression, social mobility, labor rights and working conditions. Okay, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ओके, नाउ सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट क्या है? आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन. फैशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज, allowing people to express themselves, assert their cultural heritage and communicate social status, values, aspirations through clothing and style. Fashion serves as a form of self-expression and empowerment, enabling individuals to construct and communicate their personal narratives and identity. Now, जैसे कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, कुछ लोग हैं, किसी को ट्रेडिशनल पसंद है, किसी को फ्यूजन पसंद है, किसी को वेस्टर्न पसंद है, and that is how they put themselves in the society, right?
और अपना जो, और फैशन क्या है कि हम लोग जो कपड़ा जो पहनते हैं या जो भी है, it helps you to shape an individual. It helps you to shape yourself as an individual, right? You have the power to express yourself. If you are a very culturally rich person, you will appreciate your culture, and accordingly you will take up things, or maybe adorn yourself, or maybe you would have things in and around wherein it is very, very culturally rich. Okay, you will take as inspiration from different kinds of clothing and style which is traditionally rooted, right? It is a form of self expression, right? So socially you would note that, जैसे कि if for example if I talk about सुधा मूर्ति, ठीक है, आपको पता है, do you know who she is, सुधा मूर्ति? यस मैम, इन्फोसिस की चेयरमैन रह चुकी हैं. Yes, she is the chairman of Infosys. So आपको छोड़ के बाकी सबको पता है, do you know who she is? Does anyone else also have heard of or seen the image of Sudha Murthy? So she is a lady who always wears a sari. Okay, that is her fashion statement. Okay, wherever she goes, she wears her sari, she wears a bindi, she wears her kumkum, and she makes a bun. Okay, bun with flowers, around it. She's a Tamilian lady, but she appreciates her own traditional cultural heritage. Okay, so that's how she has been. अगर मैं, और that is her self expression, that is her individuality. ठीक है, तो वैसे ही wherever she goes, she has this signature style of dressing, right? Understood? So likewise, everyone has their own cultural style. Everyone has their own cultural style, and everyone has the power to express themselves through fashion, through garments, through their styles, right? So it is a form of identity and developing your own self expression. Okay, now coming to social mobility, fashion can be a vehicle for social mobility, offering opportunities for upward mobility and empowerment, particularly for marginalized communities and unprecedented groups. The industry has witnessed increasing diversity and inclusivity efforts, with initiatives aimed at promoting equal representation, fostering talent diversity, and challenges stereotypes and biases. ओके, सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? What do you understand by social mobility? It gives you a direction, basically. It gives you a direction wherein you can raise your standards. Okay, you have enough opportunities to raise your own standards, and ये उन लोगों के लिए भी ज्यादा ये है क्योंकि इतना डाइवर्स है इंडिया, ठीक है, और it has such diversity that people are very very much into the fact that कि हम inclusive होने का effort put करें, right? With initiatives aimed at promoting equal representation, fostering talent diversity, and challenging stereotypes and biasness. Okay, जैसे कि for example, if I talk about LGBTQ, okay, so they have their own group. That is how they have upgraded themselves. Now they have their community, they have their voice. People know that they belong to this community, and that's how they have propelled themselves. They have moved in an upward direction. Okay, so fashion, the color for them, they have also represented themselves with a particular color, right? So these are the things which plays significantly a very, very important role in shaping the social status of the unprecedented or marginalized community also, right? Now coming to labor rights and working conditions. Now what happens is
The fashion industry faces a lot of challenges related to labor rights, because यहाँ पे इतने सारे marginalized community के लोग भी काम करते हैं, जो कि वर्कर्स के हिसाब से काम करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में ना उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस पे काम करने का वो ये नहीं मिलता, प्रिविलेज नहीं मिलता, राइट. वर्किंग कंडीशंस गंदे हैं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड देन दे आर फोर्स्ड टू वर्क. और वो लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए. ओके, सो ये सारी चीजें बहुत वायलेट होती हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही वायलेट होती हैं, which is why fashion industry always faces these challenges. Okay, लेबर राइट्स को लेके, एथिकल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस को लेके, हम लोग कहाँ से सोर्स करें. मान लो कोई जैसे बांग्लादेश में देयर आर लॉट ऑफ स्वेट शॉप्स. ओके, स्वेट शॉप्स का मतलब ये है कि मतलब वो ऐसे ऐसे इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते हैं, वहां पे एसी नहीं है, फैन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस नहीं है, आंखों में प्रेशर डाल के वो लोग काम कर रहे हैं. इतने छोटे से स्पेस में 10-12 लोग बैठे होंगे, ठीक है, वहां पे काम कर रहे होंगे. वहां पे प्रॉपर स्पेस नहीं है, एथिकल मतलब स्पेस नहीं है, मतलब वहां पे एथिकल वर्किंग कंडीशंस नहीं है. सो तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना होगा कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट का बनने का तरीका सही है या गलत है, whether that is ethically sourced or not. We need to pay attention to the brands whether they are ethically sourcing the product or not. जनरली ये चीजें कहाँ देखी जाती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में, वेयर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड. आप देखोगे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, मतलब ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये जो लेबर राइट्स वायलेशन, ये सब बहुत ज्यादा कहाँ होता है? डेवलपिंग कंट्रीज में. बांग्लादेश में ये बहुत ज्यादा होता है, श्रीलंका में ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पाकिस्तान में, ऐसे कंट्रीज में जो कि डेवलप कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं डेवलप होने के लिए. सो these are the countries wherein you would see that labor rights and working conditions are violated. It is not ethically done. Okay, issues with child labor, छोटे से बच्चे को लेके काम करवाया, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती एक इनह्यूमन कंडीशंस में बोल रहे हैं उनको, उसको काम करने के लिए, अनफेयर वेजेस, ठीक है, पगार सही से नहीं मिलना, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, कि वहां पे प्रॉपर सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू टू बी अ कंसर्न, प्रॉम्प्टिंग calls for greater transparency, accountability and responsibility across the fashion supply chain. Okay, which means that कि हम जब कोई ब्रांड से चीजें खरीद रहे हैं, we need to know कि ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पे प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, वहां पे फेयर ट्रेड है कि नहीं है, वहां पे वहां जहां से हम वो प्रोडक्ट सोर्स होके आ रहा है, ठीक है, कंपनी क्या है, उसको तो कम पैसों में चीजें चाहिए ना, तो वो तो ऐसी जगह पे काम करवाएगा जहां पे कि सस्ता उसको पड़े और प्रॉफिट सारा वो ले जाए. करेक्ट, तो दैट इज डन. वो तो कंपनी टू कंपनी वो वैरी करेगा, बट we need to take a call as a responsible consumer whether that is ethically done or not. For brands like Zara, Asda, Primark, ये जो सारे ब्रांड्स हैं ना, ये एथिकली ये नहीं है, दिस आर नॉट एथिकल ब्रांड्स. ये लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश में काम करवाते हैं, ठीक है, इतना इनह्यूमन, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, एक जगह प्रोडक्शन हो रहा था और वो पूरी बिल्डिंग ना, वो पूरा बिल्डिंग ही वो स्मैश हो गया, ठीक है, बारिश की पानी खा खा के वो बिल्डिंग स्मैश हो गया, और वो कलर्ड नहीं था, पेंटेड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे लोग बैठ के काम कर रहे थे. और इतने इनह्यूमन कंडीशंस में लोग कैसे काम करेंगे? मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. Is this visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, see.
This is the condition where the laborers are working. This is the condition. Can you imagine? Child labor. इतने अनएथिकल स्पेस से अगर हम उनसे काम मतलब उस ब्रांड को प्रमोट करेंगे, उस ब्रांड से हम यू नो चीजें खरीदेंगे, तो डू यू थिंक इट इज एथिकल? इतना इनह्यूमन कंडीशंस में देखो, गारमेंट वर्कर्स विद प्रेशर नॉट बॉयकॉट, देखो कैसे बिल्डिंग पूरा ये भसड़ गया है। देखो कैसे इनह्यूमन कंडीशंस में ये लोग काम कर रहे हैं। See, so when we are not just buying a garment, we are buying people's life, we are buying people work। जैसे कि देखो, this is a brand शीन का, violating labor laws। देखो कितने जैम पैक तरीके से काम हो रहा है, बैठने का सांस लेने का भी जगह नहीं है। Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I made your clothes. But at the cost of what? The life. Pay garment workers a living wage. A worker should be able to afford their food, rent, healthcare, education, clothing, transportation, and savings. A living wage is a human right for all people all over the world. We need to understand this. This is not something which can go on for ages. So we need to be very, very responsible कि हम किस कंडीशंस में लोगों को काम करवा रहे हैं और किस तरीके से काम करा रहे हैं और कौन से ब्रांड से हम खरीद रहे हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फास्ट फैशन वर्कर, जारा, H&M, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं। समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या सो लेबर राइट्स एंड वर्किंग कंडीशंस। तो आपने देखा कैसे ये स्वेट शॉप्स वगैरह में अनफेयर वेजेस और कैसे फोर्स लेबर, कितने इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हम जब कोई ब्रांड से खरीद रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड रिस्पॉन्सिबल दैट कि हम जो खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है कि क्या है। हमें R&D करना चाहिए, रिसर्च करो, देखो एंड फिर उस ब्रांड से खरीदो। ठीक है, फास्ट फैशन ब्रांड्स को तो कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर प्रमोट अ फास्ट फैशन ब्रांड, राइट? Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now coming to cultural impact. Okay. Globalization, homogenization.
Fashion globalization has led to spread of trends, styles, and aesthetics across borders, resulting in cultural hybridization and blurring of fashion boundaries. So fashion is no more limited. Okay, fashiन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमने बहुत अच्छी चीजें देखी हैं. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हमको एक एक ऐसा स्पेस दिया जहां पे कि देयर इज नो मोर बाउंड्रीज. ओके, Indian fabrics, Indian textiles, Indian fashion goes to Paris Fashion Week, and people appreciate the craft. हम जब बाहर जाते हैं, हम वहाँ के आर्ट, कल्चर, फूड, हैबिट, सब कुछ सबको अप्रिशिएट करते हैं. So there has been a cultural hybridization. आज के डेट में you appreciate eating burgers, pizza. ये सब कहाँ का है? Pizza is from Italy, burgers are from America, French fries are from America. We appreciate ना, हमको अच्छा लगता है ना खाना. Correct? Right? तो ये लेकिन कहाँ से आया? वहीं से आया है. Right? तो जब ये वहां से आया है, so there is a cultural hybridization. राइट, वो मिक्स हो गया. ठीक है, जैसे कि चाइनीज, जो ऑथेंटिक चाइनीज है, हम तो वो खा नहीं पाते है ना, तो हमने उसको इंडो चाइनीज टेस्ट के हिसाब से बनाया. तो इंडिया का जो चाइनीज है, इट इज वेरी स्पाइसी, वेरी गार्लिकी, वेरी टैंगी, राइट, बट वी लाइक इट दैट वे. सो क्या हुआ, धीरे धीरे जब चीजें स्प्रेड होने लगी और बाहर की चीजें और हमने देखा, जाना, एक्सपोज हुए, तो इट हेल्प यू टू ब्लर आउट द फैशन बाउंड्रीज. तो ये जब हम लोग अपने अपने कुकून शेल्स में थे, तो वो कुकून शेल से जब बाहर निकले, तो वी कुड सी कि ओके, ये दुनिया इतनी बड़ी है, वहां के लोग ये पसंद करते हैं, वहां के लोग ऐसे खाते हैं, बैठते हैं, पहनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हमारी चीजों को भी उन्होंने सराहा, वो लोग अप्रिशिएट किए. राइट? As fashion becomes increasingly interconnected and accessible through digital media and globalization, it has the potential to both celebrate cultural diversity and promote cultural homogenization as well. Right? आप देखते हो कि बाहर के वेब सीरीज आप देखते हो, बाहर के सोशल मीडिया में आप देखते हो कि कि कैसे फैशन वहां पे ग्रो कर रहा है, वहां के लोग क्या पहनते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं. Everything is accessible, everything is in the tip of your hand through internet. सोशल मीडिया फैशन इन्फ्लुएंसर्स, जो इंटरनेशनल फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, गेम्स हैं, तो उससे क्या होता है कि यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, and that promotes the cultural homogenization as well. Homogenization as in it helps to promote the cultural mobility around it. Right? Cultural appropriation. The fashion industry grapples with issues of cultural appropriation, where elements of one culture are adopted or adapted without proper acknowledgement or respect for cultural significance. Cultural appropriation controversies highlights the importance of cultural sensitivity, dialogue, and collaboration in fashion design and representation. अब क्या है कि जब हम कल्चरल अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कि हम इंटरनेशनली या फिर नेशनली कोई चीज को हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उस चीज को अपने तरीके से ढाल के उसको प्रेजेंट किया, और हम कहते हैं कि ये हमारा डिजाइन है. दैट इज नॉट करेक्ट. जब हम किसी एग्जिस्टिंग चीज से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मान लो इफ आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एन अफ्रीकन पर्टिकुलर वीव नोन एज केंते. ओके, अफ्रीका में एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल बनता है जिसका नाम है केंते वीव. वो एक फैब्रिक है, वो स्ट्रिप्स में वो फैब्रिक को बनाते हैं. ठीक है, अगर मैं वही चीज इंडिया में लेके आऊं और उसको प्रिंट के माध्यम से प्रिंट करूं, बोलूं कि ये मेरा डिजाइन है, ये गलत है ना. जहां का है हमें उस चीज को तो एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए. क्या होता है कि ये जो कल्चरल इन्फ्लक्स और कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि लोग उस चीज को क्रेडिट नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एक आर्टवर्क है, ठीक है, और मुझे वो आर्टवर्क बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और मैं अब वो आर्टवर्क आपसे लेके आई
और मैंने उसको क्या किया कि थोड़ा बहुत उसको फोटोशॉप और एडिटिंग करके उसको अपना थोड़ा टच दे दिया और उसके बाद उसको पोस्ट कर दिया, saying that कि this is my artwork. How would you feel? Would you feel good? No, No, ma'am. ma'am. No one will feel good because ये तुम्हारा काम था जो कि मैं लाके उसको थोड़ा हाईलाइट कर दी, बट हाईलाइट करने का मतलब या फिर उसको अडेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो काम मेरा हो गया, करेक्ट? जिसके वजह से फैशन इंडस्ट्री में ये हमेशा एक इशू रहता है कल्चरल अप्रोप्रिएशन का, जहां पे कि दूसरे कल्चर के एलिमेंट्स को लेके हम, ठीक है, और हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए कि उस चीज का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। हम उस चीज को कल्चरल, हम उसका रेस्पेक्ट भी नहीं देते, उस चीज को अक्नॉलेज भी नहीं करते, एंड विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, सो कल्चरल अप्रोप्रिएशन को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं because it hurts the religious sensitivity, cultural sensitivity, collaboration। तो जिसके वजह से it is very very important that we need to understand कि हम जहां से जो चीज ला रहे हैं ना, we need to give proper acknowledgement to the person or the community from where have we got it, right? So that is cultural appropriation. Now, third is sustainability and cultural heritage. Fashion sustainability efforts can often intersect with cultural heritage preservation, as designers and brands seek to incorporate traditional craftsmanship, artisanal techniques, and indigenous materials into their collections. By promoting sustainable fashion practices and supporting local artisan communities, the industry can contribute to the preservation and celebration of cultural heritage around the world. फॉर एग्जाम्पल सब्यसाची, ऋतु कुमार, ठीक है, जो ये जो अबुजानियन, संदीप खोसला, ये जो डिजाइनर्स हैं, ठीक है, वो लोग ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जो कि इंडिया में पहले हो नहीं रहा था। ये तो वही वर्कर्स है। अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी अराउंड इट। जो चीजें इंडिया में थी वो वही चीज कर रहे हैं, बट अभी उस डिजाइन का लेआउट चेंज हो गया है, उस चीज को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, उसका एक नयापन है उस चीज में। द डिजाइनर ब्रिंग्स आउट द एसेंस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप without losing the cultural heritage, and thereby preserving and celebrating the cultural heritage around it, ठीक है। So the thing is, that a designer or fashion sustainable, so पहले क्या था, इतना ऑटोमेटेड नहीं थे चीजें, ठीक है, चीजें इतनी ऑटोमेटेड नहीं थी, तो चीजें क्या थी कि बहुत वो नेचुरली वो वो लोग बनाते थे और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से बनाते थे, आर्टिसनल टेक्निक और मेथोडोलॉजीज था उसके अराउंड, इंडिजिनस मटेरियल था, ठीक है, और उसी चीज को वो लेके डिजाइनर्स उसी चीज से इंस्पिरेशन लेके उसका लेआउटिंग और डिजाइन एस्थेटिक्स चेंज किए, जिसके वजह से आज आपको जरदोजी का काम बहुत सुंदर लग रहा है जब वो सब्यसाची के यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर ट्रेडिशनल, जरदोजी, ये सारे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ही हैं, बट उसका लेआउटिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत नए तरीके से है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत नए तरीके से है, करेक्ट। So these are the things wherein the designers plays the effort to bring something very new into the plate, which is why we feel that ki, this is something which is really new, which had never existed. No, जब हम ट्रेडिशनल चीजों की बात करें तो डिजाइनर्स हो या brands हो, what they do, they take up the craft, they understand the craft, they portray it in their own design language, which is why it becomes a sustainable symbol, and without divulging the fact that कि हम उनका कल्चरल हेरिटेज जो है हम उसको खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
Okay. Now on environmental impact, मैंने आपको बताया कि कल क्या 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 चीजें हैं, ठीक है, कि हम कैसे इस चीज को कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उस चीज को कम करने के लिए, खत्म तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम करने के लिए, ठीक है। So I'll just read it out for you so that you understand कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या, आप लोग भी मेरे साथ इसको पढ़ो, ठीक है, so that you understand. The fashion industry is one of the largest contributors to environmental pollution, particularly water pollution and air pollution. Water pollution कैसे? Textile dyeing and finishing processes involves the use of chemicals and toxic substances which are often released into the waterways, contaminating rivers, lakes and oceans. मैंने आपको बताया था कल लाइफ अंडर वाटर वाला चीज, राइट? तो ये इंडस्ट्री में क्या है कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है because of the usage of chemicals and toxic substances for textile dyeing and all, and which is further released into the waterways, thereby contaminating the river, lakes and oceans. Okay. Additionally, textile manufacturing facilitates manufacturing facilities emit pollutants such as volatile organic compounds, VOCs, and greenhouse gases contributing to air pollution and climate change. Right? Second, coming to resource depletion. What is resource depletion? Fashion production relies heavily on natural resources such as water, energy, and raw materials, including cotton, wool, silk, and synthetic fibers. Okay. The extraction, cultivation, and processing of these resources can lead to habitat destruction. Now, understand this very, very sincerely. ये जो चीजें हैं, कॉटन, वुल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स तो चलो ठीक है, मैन मेड लैब ग्रोन है, कॉटन, वुल, सिल्क, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, अगर इसका प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्शन और कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो फिर दिस विल लीड टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. अगर हम इसको रैंडमली ऐसे ग्रो कराएंगे, इसका कोई सर पैर, इसका प्रॉपर ध्यान से इसको कल्टीवेट नहीं कराएंगे, so what if you know, you might know or you might not have heard, I don't know, right? So इंडिगो डाई, ठीक है, इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसको कि एक बार एक पैच ऑफ लैंड में अगर उगा दिया तो सेकेंड टाइम उसका प्रोडक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, वहां पे वो प्रॉपरली वहां पे खेती बाड़ी और नहीं हो सकती, ठीक है. सो इंडिगो इज अ वेरी गुड डाई, वहां से एक बहुत नेचुरल बढ़िया कलर का डाई निकलता है, इट्स अ ब्लू कलर डाई, ठीक है. बट वो एक बार वो पौधा लग गया, अगर उसका प्रॉपरली तरीके से उसको प्रोसेस नहीं किया गया तो फिर वहां पे और कुछ पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं, राइट? सो दिस इज लीडिंग टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. सो वी नीड टू नो कि हम कहाँ पे उसको लगाएं कि वो चीजें फिर अनअफेक्टेड वे में ग्रो हो सके, राइट? So habitat destruction, deforestation, soil degradation, and water scarcity, exacerbating environmental degradation and biodiversity loss, right? Waste generation. The fashion industry generates a staggering amount of waste at every stage of supply chain, from textile production to garment manufacturing to retail and consumer disposal. Fast fashion, characterized by its rapid production cycles and disposable clothing. फास्ट फैशन का मतलब क्या है? रैपिड प्रोडक्शन साइकिल, मतलब एकदम फटाफट प्रोडक्शन होता है और एकदम फटाफट डिस्पोज भी होता है, कंज्यूमर के पास आने के बाद फटाफट डिस्पोज भी हो जाता है, करेक्ट? So disposable clothing has fueled a culture of overconsumption and excessive waste. ओवरप्रोडक्शन, ओवर कंजप्शन, और उसके बाद फिर वेस्ट होता है. मैं आपको कल ही वो समझा रही थी वेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है.
Discarded garments end up in landfills where they contribute to the accumulation of textile waste and release of harmful pollutants as they decompose. मान लो कॉटन का ही शर्ट बना है लेकिन वो एक फास्ट फैशन गारमेंट है, उसमें कुछ सिल्क थ्रेड के पॉलिएस्टर थ्रेड के एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो क्या होगा? शर्ट तो चलो ठीक है, वो नेचुरल कंपोनेंट से बना था, वो तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट दोस पॉलिएस्टर थ्रेड्स, प्लास्टिक थ्रेड्स? वो तो मिट्टी में मिलेगा नहीं, वो जनरेशन तक रहेगा. It will be a harmful pollutant to the environment. तो ऐसे ही चीजों को जब हम केयरफुली सोचे समझे और चीजों को फिर ध्यान में रखें तो ये सारी चीजें नहीं होंगी. ठीक है. केमिकल पोल्यूशन, फर्टिलाइजर, डाइज, ब्लीच, फिनिशिंग एजेंट्स, ये सारी चीजें जो हैं कंटामिनेट करती हैं सॉइल, वाटर, एयर, इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट है ये. एंड जब वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उस कम्युनिटी में अगर मान लो कहीं पे जंगल है या कुछ है, वहां पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो फॉरेस्ट फिर ज्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे इतना पॉल्यूशन होता है कि वहां पे सरवाइव करना मुश्किल होता है एनिमल्स के लिए. ठीक है. कमिंग टू कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट जैसे हर चीज में कार्बन एमिशंस होते हैं विद सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन दी क्लाइमेट चेंज. आप देख रहे हो आज के डेट में कितना ज्यादा गर्मी, कितनी ज्यादा ठंड, कितनी ज्यादा बारिश, कोई सर पैर नहीं है, कब बारिश हो जाए, कब धूप हो जाए, कब क्या हो जाए. राइट. सो fashion industry is a major contributor to carbon emissions with significant impacts on climate change. From raw material extraction and processing to manufacturing, transportation, and distribution, fashion production involves energy intensive processes that rely heavily on fossil fuels. Right? Additionally, the rise of fast fashion and globalized supply chain has led to increased transportation emissions from the movement of goods across long distances. अगर आप ग्लोबली ऑपरेट करो तो आपको चीजें इंटरनेशनली भी शिप करनी होंगी, तो इंटरनेशनली शिप करनी होगी तो यू हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जिसका कि कार्बन एमिशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन. करेक्ट. सो फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग देयर इज अ रेपरकशन अराउंड इट. राइट. Microplastic pollution, very, very important. Synthetic fibers such as polyester, nylon, acrylic, commonly used in fashion production, shed microplastic particles during washing, contributing to microplastic pollutions in oceans and waterways. Okay? The microplastics can be ingested by marine organisms that enter the food chain, posing risk to ecosystems and human health. जो फिर आप उस marine organisms को जो आप खाते हो, तो फिर आप भी microplastics ही खा रहे हो. राइट. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है बिकॉज ओवरऑली फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करता है. ठीक है. एंड इट इज मल्टीफेसेटेड, encompassing pollution, resource depletion, waste generation, chemical contamination, carbon emissions, and microplastics pollution. Addressing these environmental changes requires collective action and systemic changes across the fashion supply chain. सिस्टमिक चेंजेस मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल चेंजेस. थोड़े थोड़े सिस्टम्स में ऐसे चेंज लाया जाए जिससे कि ये सारी चीजों को थोड़ा कम किया जा सके, इंक्लूडिंग अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, circular economy models, innovative technologies to minimize environmental harm and promote more regenerative and equitable fashion industry, which means that कि हम ऐसे इकोनॉमिकल मॉडल्स डिजाइन करें कि जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहीं जाके घूम फिर के फिर वेस्ट भी डिपॉजिट हो जाए, है ना. तो ये सारी चीजों को हमें बहुत ध्यान में रखनी है टू मेक द फैशन इंडस्ट्री मोर जनरेटिव एंड इक्विटेबल. So, in summary, the fashion industry's global impact extends beyond aesthetics. It is not just only about looking good. हम फैशन क्यों पहनते हैं? हमको अच्छा लगना है. So that narrative has changed now. That narrative have, so the narrative has changed now.
So the narrative has changed now, right? So the idea of fashion, this statement of fashion, thinks that we have to move beyond aesthetics, right? The fashion industry global impact extends beyond aesthetics and commerce to encompass broader economic, social, and cultural dimensions, shaping identities, livelihood, and societies in profound ways. As the industry continues to evolve, addressing its social and environmental changes while embracing innovation and inclusivity will be crucial for creating a more equitable, sustainable, and culturally rich fashion ecosystem. हम कुछ अगर ऐसा बनाएं जो कि ये एनवायरमेंटल चेंज चैलेंजेस को एम्ब्रेस कर पाए और ऐसा इनोवेशन लेके आए जहाँ पे कि हम फैशन को ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं, इक्विटेबल बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, कल्चरली रिच बना सकते हैं, तो फिर ये चीजें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमें, ठीक है? तभी ये चीजें वर्क करेंगी, and then only we can make a very rich fashion ecosystem. Okay, did everyone understood what I was talking? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have to take the responsibility, and that is how this is the need of the hour. That is how the fashion industry is growing right now. So we cannot really look into the aesthetics. Obviously, fashion talks about aesthetic. हम चीजों को सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, but do you really think it is worth it at the cost of someone's life? Do you really think it is important to think? Don't you think it is important to rethink on our fashion narratives? It is very, very important. It is very, very important. Okay. So take your time and understand how the industry is operating and what is the need of the hour. The need of the hour is to make the industry more sustainable, more practical, more, culturally rich, and move beyond aesthetics. राइट? आप अच्छे भी लग सकते हो एक प्रॉपर प्लेन नॉर्मल व्हाइट कुर्ता पहन के जहां पे कोई डाइज नहीं यूज हुआ है। अगर आप वहीं पे यूज करो एक ब्लैक शर्ट पॉलिएस्टर का जो कि बहुत लग्जरियस लग रहा है, बट you have to think wisely. You have to think wisely, right? So that's all for today. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. I hope you understood whatever was taught to you in the class today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much.